Hi students, good morning. Let's continue with the topic of Gauss's theorem, or the topic which was running in physics was electrostatics. Let's quickly summarize what all we have studied till now. We have studied the word electrostatics, which means charges at rest, or study of that branch of physics which means charges at rest. In electrostatics, we had studied the word electrical field, that means that particular region which is surrounding a charge. Okay. Now, जितना भी ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस होता है, जहां तक भी आप उसको फील कर सकते हो, सो वी हैव आर्टिफिशियली मेड अ सरफेस अराउंड दैट एंड दैट विल बी नोन एज गॉसियन सरफेस. सो सपोज करो इफ आई हैव गॉट अ लाइन, सो दिस इज अ मेटालिक वायर, एक मेटल का एक तार है और इस पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं. ओके, लाइक दिस and so on and so forth. Now, if I want to assume that there is a Gaussian surface around it, imagine करो यदि वो पॉइंट होता तो मैं किसके आजू बाजू में एक सर्कल बना देता, बट यहाँ पर तो ये लाइन है. सपोज दिस इज द लाइन, so that means that I need to make a Gaussian surface which would be encompassing this particular surface, right? इसका मतलब है मुझे ये जो लाइन बनाना पड़ेगा, ये जो सरफेस बनाना पड़ेगा, that will be something like this. राइट, ये वाला जो पार्ट है ये तो स्ट्रेट ही आ जाएगा. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फिगर? दिस फिगर इज ऑफ व्हाट? सिलेंडर. तो इसका मतलब है यदि ये वायर है और यदि इस वायर को यदि कोई एक गॉसियन सरफेस कवर करा हुआ है, सो दैट मींस इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस. सो दिस एंटायर फिगर विल बी नोन एज व्हाट? अ सिलेंडर. बट बिफोर एक्चुअली वी मूव ऑन टू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म Gauss's theorem. So remember, if you understand what is Gauss's theorem, that was circuital integral of E dot ds should be equals to 1 upon epsilon naught times the charges enclosed, and this is known as Gauss's theorem. Gauss's theorem simply means for a closed surface, if you are going to take electrical field intensity around that closed surface, then it should be equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. So what are we going to do today? We are going to do these two derivations. I thought of doing third and fourth, but again that's going to make a load of lengthier video. So I'm going to keep the video shorter at around 15 and 20 minutes because you don't know उतने time में होंगे. And then tomorrow we are going to take two more derivations, and then this topic would be ending up. The day after tomorrow we will be taking capacitance and the polar dielectric, non-polar dielectrics, capacitance equations. Once this entire chapter number 1 and chapter number 2 is done, chapter number 1 is already done, chapter number 2 is done, then we'll only take for around 2 days numericals, some from the CBSE, some from the state book. So let's move forward. Electrical field intensity due to a line charge. So what I have done is I have made this a metallic wire which is consisting uniformly some charges. तो इसमें यूनिफॉर्मली कुछ चार्जेस हैं ना. आपको मालूम होना चाहिए, यदि नहीं भी मालूम तो मैं आपको भी बता देता हूं, दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी, and what is linear charge density? It is shown by the symbol lambda, and which means Q by L, or Q should be equals to lambda L. ध्यान रखना, what is lambda? Lambda is known as linear charge density. What do you mean by the word linear charge density? Linear charge density means जब भी कभी कोई भी एक वायर होगा या बहुत पतला सा एक लाइन है जिसके ऊपर में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, then you have to take linear charge density. So let's assume that there is this metal wire and on which some charges has been put up. वो charges spread हो गए यूनिफॉर्मली. अब मैंने कुछ गॉसियन सरफेस बना दिया, बट सर आपने पूरे के अलोंग क्यों नहीं बनाया? बिकॉज यदि आपको थ्योरम याद हो, गॉसियन सरफेस केवल क्लोज सरफेस पे काम करता है, तो ये तो वायर पूरा का पूरा ओपन है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने केवल दो ये एरियाज ले लिए हैं, सो दैट कि मैं बता सकूं कि ये क्लोज्ड है, मतलब ये इतना इतना. अब टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर कितना होगा? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds शुड बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? इस केस में यहां पर आपके पास में जो E है, that should be equals to, because of two surfaces,
एक तो ये जो लाइन के ऊपर में आ रहा है दैट मीन्स जो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर में कितना चार्ज आ रहा है, एक तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये जो दो आपको जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं विच आर द एंड कैप्स ऑफ योर सर्कुलर ट्यूब, आपको इन दोनों पर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, ओपन तो नहीं ले सकते। सो यदि क्लोज सरफेस है तो आपको मालूम होगा E डॉट डी एस का मतलब क्या होता है। बट बिफोर सॉल्विंग दिस अंडरस्टैंड A वेक्टर डॉट B वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज A B cos थीटा। नाउ प्रॉब्लम इज आपको मालूम होना चाहिए दैट जो भी कोई आपके पास में ds वाला पार्ट होता है दिस एरिया इज ऑलवेज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस। यहां तक था तो चलो ये ठीक है, यही वाला सरफेस है तो इसका यही वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो नॉर्मल है वो भी ऐसे ही नहीं जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल लाइन दिस, नो प्रॉब्लम विद दिस लाइन। बट यदि आप ढंग से एक बार इस सिलेंडर को देखोगे और यदि आपने केवल इस सर्कल पे फोकस किया तो इस सर्कल का जो नॉर्मल होगा वो तो कुछ ऐसे में जा रहा होगा, जबकि जो आपका ds वाला पार्ट है वो तो कुछ ऐसे में जा रहा है, राइट? I mean, if you are going to take, say, the electrical field is in this direction, and your ds, which is the area for only this cap, is going in this direction. Same part with this also. इसका मतलब है only for the part of end caps. For two end caps, that means E dot ds, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, it should be equals to E ds cos 90। but problem is cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। that means that for region number 1, मतलब ये वाले और ये वाले रीजन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे पास में कितना हो जाएगा, 0। सो ऑन कैप्स बिकॉज दोनों का डायरेक्शन ही परपेंडिकुलर है एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर पार्ट इज 0। बट देन व्हाट अबाउट दिस, ये जो वायर है इस वायर के ऊपर में ये वाला जो ट्यूब है तो यहाँ पर भी तो चार्जेस हैं, एंड कैप का तो काउंट कर लिया बट यहाँ पर भी तो चार्जेस हैं। यदि आप ये मार्कर देखोगे सो दिस इज अ फ्लैट सरफेस जिसको हमने 0 माना, इसको भी 0 माना, बट यहाँ पर भी तो है चार्जेस। सो इसके लिए फॉर रीजन नंबर 2 के लिए आप क्या करोगे, दैट इज फॉर द सरफेस सर्कुलर इंटीग्रल E dot ds should be equals to Q by epsilon naught। यही होता है हमारे पास में फॉर्मूला, दैट इज E dot ds should be equals to Q by epsilon naught। अब यदि आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करा E dot ds का एंड सपोज कर लो यदि मैंने इस वाले लाइन के लिए लिया देन इस केस में E और ds के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 0, क्योंकि लाइन E भी यहाँ पर जा रहा है और ds भी इसके नॉर्मल है, इस पूरे के पूरे सरफेस के नॉर्मल है। सो दैट इज 9 मतलब 0। सो फॉर द सेकेंड सरफेस E डॉट ds या E ds cos 0 डिग्री should be equals to Q by epsilon naught और E ds should be equals to Q by epsilon naught। राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी आपको सर्कुलर इंटीग्रल ds का करना है। ds का सर्कुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको याद है इंटीग्रेशन का मतलब जो d को कैंसिल कर देता है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा। सो दैट मीन्स दैट E डॉट ds के लिए नाउ आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, दैट मीन्स surface area of a cylinder, what is the surface area of a cylinder, that is 2 pi r h, but यहाँ पर h तो है ही नहीं, यहाँ पर तो l है because length, so that means E dot 2 pi r l should be equals to Q by epsilon naught, right? E dot 2 pi r l, अब ये 2 pi r l कहाँ से आया, because surface area of cylinder should be equals to 2 pi r h। h का मतलब लेंथ ऑफ द वायर है क्योंकि हाइट तो होती नहीं है वायर में। तो ये आ गया आपके पास में। बट देन q की जगह पर कैन आई पुट समथिंग, ऑफ कोर्स यस। सो यहाँ पर मैंने रखा E should be equals to
Q की जगह पर I have substituted the value that is lambda L, okay, by 2 pi r L epsilon naught. And this is for the part of what? A electrical field intensity due to a line charge. So this is for the line charge. Guys, ये जो मैंने arrow ऐसे बनाया, do not make that arrow, right? Substituting the value of Q over here to get this part. But then comes the question, sir, why do you need to take actually lambda? Please understand that इस पूरे के पूरे लाइन पे एक चार्ज नहीं है. There are thousands of charges and that's the reason why I need to calculate the linear charge density. कि वायर पे हर इंच के ऊपर में या हर सेंटीमीटर पे या हर मीटर पे आखिर चार्जेस की डेंसिटी कितनी है. So this is the derivation for electrical field intensity due to a line charge. Again repeating, Gauss's theorem आपको learn होना चाहिए. What is Gauss's theorem? Gauss's theorem simply says that in a closed surface area or in a closed surface, the electrical field intensity is always going to be 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. So this is the part. Now let's move on to the second derivation, and which is electrical field intensity due to a uniformly charged spherical shell. Now let's see. So let's rub it. So when I am talking about the word the uniformly charged spherical shell, then what do you mean by the word spherical shell? Spherical shell का मतलब हो गया जो अंदर से क्या होगा, hollow होता है. Okay, so something like this. So there is this particular part. Let's make a radii, और मैंने इस वाले पार्ट को ले लिया है से आपका कैपिटल R. नाउ इस स्फीयर के आजू बाजू मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस, ये एक्चुअली में होता नहीं है. दिस इज जस्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट्स ऑल. सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस. नाउ व्हाट इज द रेडियस? से यदि यहां से मुझे यहां तक का रेडियस देना है, देन दिस विल बी r. कॉमन सेंस इन दिस केस, दैट इज r इज प्रीटी ग्रेटर देन r, राइट, क्योंकि r की वैल्यू r से बड़ी है. अब इसमें तीन केसेस हो जाएंगे. कौन कौन से? फर्स्ट, if the charge is lying somewhere outside this particular sphere. So case number one, if the point where you need to test, if the point lies outside the sphere, यदि आपका ये पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा? उस केस में गाइस ध्यान रखना, सपोज कर लो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर है, P के पास में, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मेजर करना है. सो EP, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? दैट इज सर्कुलर इंटीग्रल E डॉट ds शुड बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. यही होता है फॉर्मूला गॉसेस थ्योरम का. तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया गॉसेस थ्योरम. Now guys, if this is the sphere, what do you think is the surface? The surface area का फॉर्मूला क्या होता है sphere के लिए? The surface area formula is E ds. यदि आपने कोई छोटा सा एक पार्ट माना है, so this would be the normal, right? So E ds should be equals to, और क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है, सॉरी, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है तो आंसर 0 आता है. तो cos 0 की वैल्यू 1, वही सेम केस. सो E ds should be equals to, एंड कितना? दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट ds की जगह पर क्या हो जाएगा? E डॉट 4 pi r square should be equals to Q upon epsilon naught. Why? Because surface area of sphere, it should be equals to 4 pi r square. But sir, why have you taken small r? Sphere तो ये रहा, आपने ये क्यों लिया? प्लीज ध्यान रखना, आपको तो पॉइंट यहाँ पर मेजर करना है. तो आपने जब पॉइंट यहाँ मेजर किया तो आप क्या लोगे? सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? E 4 pi r square.
So the answer is going to be E should be equals to Q by 4 pi r square epsilon naught. This is where? For outside the shell. करेक्ट। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 कहाँ लोगे? कॉमन सेंस ऑन द स्फीयर, यहां पर मान लेना कुछ पॉइंट पे, राइट? सो लेट्स टेक, सो केस 2, इफ द पॉइंट, गाइस ये डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा फॉर स्टेट एंड सीबीएसई बोर्ड, एंड कैपेसिटेंस का भी इसी से होता है, सो प्लीज ध्यान से देख लेना। If the point lies on the spherical shell, ध्यान रखना spherical shell क्या होगा? अंदर से hollow होता है, तो यहां पर लिख देता हूं spherical shell is hollow from within. Okay. So, if the point lies on the spherical shell, अब क्या केस हो जाएगा? Once again वही सेम काम, अब की बार यहां पर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? According to Gauss's theorem, E dot ds should be equals to Q by epsilon naught. अगेन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री का ही है, तो यदि 0 डिग्री का है तो E dot ds ही रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा E and then 4 pi capital R square should be equals to Q by epsilon naught. But what is this 4 pi r square? ये r square इस बार आपने यहाँ क्यों लिया? क्योंकि आपने पॉइंट चेक करने के लिए यही सरफेस पे ही रख दिया, इसलिए जहां पर भी आप सरफेस ले रहे हो वही गॉसियन सरफेस बन जाता है। सो ये उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E should be equals to Q by 4 pi r square epsilon naught, और ये कहां के लिए होगा? ऑन द शेल। Now let's take one of the more important point, and that point would be what happens when inside the shell. Very very important guys, please ध्यान रखना। Case number 3, केस नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? That is inside the shell. Now, as you know guys, that electrical field inside a conducting shell would always be what? 0. Electrical field inside the shell equals to what? 0. क्यों 0? Because guys आपको यदि याद होगा, जब भी कभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हो, चार्ज हैज टू रिमेन ऑन द सरफेस, नॉट इन द सरफेस. चार्ज कैन नॉट रिमेन इनसाइड द सरफेस. सो इफ द चार्ज इज इनसाइड, दैट मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड तो अंदर की तरफ में कुछ होगा ही नहीं. सो दैट मींस दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी 0 इनसाइड द शेल. यदि आपने ऑन द शेल रखोगे तो पॉइंट आ जाएगा E is equals to Q upon 4 pi r square epsilon naught. राइट. अब सपोज कर लो यहां पर भी अपन ने मान लो इस सरफेस पर लिया, एंड दिस इज दैट सरफेस. तो सरफेस के लिए वंस अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं यहीं पर ही. कैसे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद करो ये पिछले वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया था. दिस सिंबल इज शोन बाय द वर्ड सिग्मा, and this sigma should be equals to what? Q by A. What is A? Q by area. अब सर अब ये कहां से आ गया डेंसिटी वाला वर्ड? क्या इस पे एक ही चार्ज है? नहीं, इस पे तो बहुत सारे चार्जेस होंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, गॉड नोस. And that's the reason why you need to do what? You need to take the surface charge density. So if it is Q by A, then you can change this particular formula and put, or Q should be equals to sigma A, or Q should be equals to sigma की जगह sigma, A की जगह पर 4 pi r square. So let's put this value right over here. So E should be equals to Q की जगह पर sigma
4 pi r square by 4 pi r square epsilon naught. So 4 pi r square will be cancelled and this should be equals to sigma by epsilon naught. So when is this case going to happen? This case is going to happen जब भी कभी आप on the surface ले रहे हो, but जब आपने अंदर के लिए ले रहे हो तो inside the shell the charge is not going to remain inside the shell, right? It has to remain on the above surface. So if it is not over here और ये आपने जबरदस्ती रख दिया है, so electrical field will be what? Zero, because the charge cannot be enclosed in the surface. On the other hand, whenever the charge is kept somewhere outside, it will start behaving as in it is kept on the surface and उससे उसकी field calculate कर सकते हो. So that's all from my side guys for today. Very very important 3 cases. पहले अपन ने आज डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, उसका डेरिवेशन मैंने आपको वो भी बताया. एंड कैप्स पे 0 क्यों होता है? बिकॉज E और DS के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्रीज का. मैंने आपको ये भी बताया कि फिर इस तरफ में आपने इसको 0 क्यों लिया? बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे जा रही है और आपका जो सरफेस है वो भी ऐसे जा रहा है, सो नो प्रॉब्लम. बट जब ये वाला सरफेस ले रहे हो देन इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहा है ऐसे और इस सरफेस का नॉर्मल है समथिंग लाइक दिस एंड दैट्स द रीजन व्हाई. गॉट इट? सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट. एंड द सेकंड में 3 केसेस, इन ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस and inside the surface. So guys, we'll see you tomorrow. There's one more lecture coming up on chemistry. It's also going to be a very small one. I'm purposely keeping all these lectures short because एक घंटे के lecture में guys आप बोर हो जाओगे. So it's better that every single दिन मैं छोटा डाउनलोड आपके दिमाग में डालता हूँ and hopefully this should be simple guys. Thank you so much guys. Enjoy. Chill. Bye.